I would now like to introduce Dr. Chinu Agarwal, ma'am, to carry on with the program for today, which is the social emotional ethical development through project based learning. Thank you so much. I have the immense pleasure to have Dr. Agrawal and Mrs. Binny Singh, both very dear people to me today as chief guest and guest of honor in this webinar. I had met Sir and got impressed by his personality when he was in Bhubaneswar, serving as the principal of RI Bhubaneswar. And Biniji has been a dear friend, a very influential educator in UP. So I welcome both of you and all the guest of honors and participants in this second webinar in the series that we are having this year. Dear friends, all of you by now are familiar with HEMA Foundation and its mission. We want to reach each and every child in the country, and we want to ensure that we are raising not only a healthy but also a happy generation. That is also the vision of NEP, which asks us to now focus not only on the head but also the heart and the hands. So, the three-edge approach that I'm repeating often with educators, with parents, and with students. And I'm again and again telling all of us that we now need to cater to the emotions which are central to any learning. जब तक हम भावनाओं को नहीं देखेंगे तब तक किसी तरह की एकेडमिक लर्निंग होना मुश्किल दिख रहा है. And in this time when our children are also exposed to a lot of things which were unknown or unfamiliar in earlier times, one of them is social media and excessive use of gadgets. We will fail as parents and teachers if we do not take into account the challenges that these children are facing. So, my dear friends, in the last webinar, I talked about the cognitive capacity, which you all are already quite familiar with. In today's webinar, I'm going to touch upon social capacity. Out of the 5 capacities that we have included, one is cognitive, second is social, third is emotional, fourth is ethical, and fifth is life skills. And we are calling our program as HAM Seed. HAM Seed उस तरह का बीज हम जमीन में रोपना चाहते हैं जो एक दिन एक खिलखिलाता हुआ हरा भरा वृक्ष बने और अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और पूरे विश्व को न केवल फल दे बल्कि छाया भी दे, स्नेह की, आशीष की. ऐसी जनरेशन को रेस करने के लिए बड़ा हमें प्रयास और प्रयत्न करने की जरूरत है. दोस्तों, इन वेबिनार्स में मैं अपनी जो लैंग्वेज है वो बायलिंगुअल रखती हूँ. इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बोलती हूँ. अगर कोई भी चीज़ मैंने इंग्लिश में बोली और आप चाहते हो कि उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके तुरंत बताइए, या फिर मैंने हिंदी में बोली और आप चाहते हैं कि वो मैं इंग्लिश में बोलूँ तो वो भी मुझे बताइए. सोशल कैपेसिटी, आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं आजकल अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगे हैं? अपने कमरे में एकांत में अपने मोबाइल के साथ, या फिर वो कहीं भी हमारे साथ शादियों में पार्टियों में जाना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं. They are not liking to accompany us in social functions. How many of you are feeling this? Yes, so many of you are saying yes. So that means
And some of you are also saying no, where you see that children are still interested in social mingling. My dear friends, why so many of you, the majority of you, are saying yes to this is that somehow children are finding the safety in this little piece of gadget. This has become their safe place, their home, where they can hide themselves, their vulnerabilities, their insecurities, and they feel that they do not need man-to-man interaction when man-to-machine interaction is so easily available. What do you think could be the consequences of such kind of attitude of children? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर ये लोग हमसे इंटरैक्ट करना बंद कर दें, इसी तरह एक अकेले रहना पसंद करें, तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या आप लोगों को लगता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए तो जरा। लीना जी कह रही है दे आर लेस सोशल. यस, दे डिप्रेशन एंड एंजाइटी, highly emotional, they go into depression. Yes. And we are seeing statistically, steadily depression and anxiety are the problems. Mental stress, easily diverted. They want to be with their own self. Socialization problem and stressed. Mental stress, lack of social emotional development. Vidya ji is saying this. मोबाइल हैज टर्न्ड आउट टू बी, बच्चे अकेले ही रहना पसंद करेंगे आगे. अग्रेसिवनेस, सोनाली इज सेइंग दैट दे आर बिकमिंग aggressive. And I can also see social anxiety, self-centeredness, detachment with society. They stop sharing their emotions. No social skills are developed. So we all are so aware. क्या होने वाला है? रिलेशनशिप विथ नो लव, बच्चे सामाजिकता से दूर होते जाएंगे, सामाजिकता उन्हें नहीं आएगी, वो लाइफ के चैलेंजेस फेस करने लायक नहीं बनेंगे, समाज का ताना बाना ही समाप्त हो जाएगा. Would cannot express their thoughts, violent behavior देख ही रहे हैं हम लोग. No emotional connection, they will join bad circles, losing sensitivity, emotional sensitivity वो खोते जाएंगे. ऐसे में सोशल स्किल्स डेवलप करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है, इसकी तरफ ध्यान देना अनिवार्य हो गया है. तो हमने जो अपना करिकुलम है उसमें एम्पैथी, सेफ्टी और टीम वर्क ऐसे बहुत सारे टॉपिक शामिल किए हैं 3rd ग्रेड से लेकर और 12th ग्रेड तक, जिसमें हम बच्चों को इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा स्टिमुलेट कर रहे हैं. और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हर वैल्यू के ऊपर एक बहुत ही प्रेरक मूवी बनाई है. उसके दौरान बच्चे उसके बारे में सोचने लगते हैं और फिर हम इस सोच को उनके साथ जो डिस्कशन करते हैं उसमें और भी गहरा करने की कोशिश करते हैं. ऐसी ही एक मूवी हमने बनाई है, टीम वर्क. ये मूवी दिखाने के बाद हम बच्चों को एक्टिविटीज देते हैं, टास्क देते हैं जो उन्हें 1 महीने में कंप्लीट करनी होती है, और 3 प्रोजेक्ट्स देते हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट और फैमिली प्रोजेक्ट, जो इस साल से हमने ऐड किए हैं. तो मैं अरविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले वो 6th ग्रेड की एक मूवी में का एक छोटा सा प्रोमो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जिसका टाइटल है टीम वर्क. फिर उसके बाद में मैं उसके प्रोजेक्ट्स की भी आप लोगों से बात करूंगी. तो अरविंद जी अगर आप तैयार हैं तो मूवी दिखाइए. परिवार एक टीम की तरह होता है जो टीम वर्क से चलता है. और आप हमारी टीम के कैप्टन है ना दादाजी? कह सकते हो, लेकिन ये टीम कैप्टन से नहीं
टीम के अच्छे तालमेल से चलती है। तो बच्चों, ये है आपका टास्क एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ड्रॉप। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। हाँ जल्दी जा। हाँ हाँ, राइट राइट लेफ्ट। बस टीचर शिवांश को हमारी टीम में ना रखे। ये जिस टीम में भी होगा उस टीम की हाथ पक्की। चलो। टीचर, क्या आप शिवांश को किसी दूसरी टीम में नहीं रख सकती? क्यों मीमो? क्योंकि वो हमारी टीम का एक वीक पॉइंट है। बिना किसी को आजमाए वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे कह सकते हो? हमारे पास 15 मिनट है। चुप हो जाओ सब। ऐसे ही लड़ते रहे तो ये टास्क भी गया हाथ से। ना हमारी टीम जीत पाएगी और ना ही तुम मिमो बेस्ट परफॉर्मर बन पाओगे। एक टीम होने के बावजूद भी सिर्फ अपने अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि टीम के कंफर्ट को ध्यान रखकर हमें काम करना चाहिए, एक दूसरे से लड़कर या ऐसे परेशान होकर नहीं। अगर हमें जीतना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। टीम का मतलब ही यह है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। आज हम ये टास्क सिर्फ शिवांश की वजह से ही पूरा कर पाए, वरना जिस तरह से हम काम कर रहे थे उससे हमारा काम पूरा होना भी मुश्किल था। पर उसने हमें एक टीम बनाया और सच में टीम बनकर काम करने का मजा ही कुछ और है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि तुम सब ने टीम वर्क और टीम की इंपॉर्टेंस को समझ लिया है। थैंक यू मैम। दोस्तों, ये था छोटा सा प्रोमो हमारी मूवी टीम वर्क का, जो लगभग 25 मिनट की मूवी है। और ये टीम वर्क की मूवी देखने के बाद बच्चों के साथ हम डिस्कशंस करते हैं, उनसे हम एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं और उसके बाद हम उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स भी देते हैं। इस बार टीम वर्क का इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो हमने दिया है, उसमें हर रोज बच्चों को ये ध्यान में लेकर आना है कि हमारे आसपास कितनी सारी टीम्स नोइंगली अननोइंगली अपने आप काम कर रही हैं। जैसे सूरज सूरज किस टीम का हिस्सा है, जैसे स्कूल बेल, जैसे एक पेंसिल और एक किताब, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स। एवरी डे they have to write about some things around them which are working in tandem with each other and preparing, this is, ये फैमिली प्रोजेक्ट है। 1 मिनट में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट समझा दूं, फिर आप इसको शेयर करिएगा। हमने फैमिलीज को इस बार इन्वॉल्व किया है और उनको ये कहा है कि फैमिली जो है एक टीम की तरह साथ में आए और बहुत सारी चीजें वो साथ में कर सकते हैं। जैसे फेस्टिवल्स को साथ में सेलिब्रेट करना। कई बार घरों में ऐसा होता है कि फेस्टिवल का सारा भार घर की गृहिणी पर आ जाता है, और वो ही अभी जन्माष्टमी होकर गई अपने यहाँ, रक्षाबंधन होकर गया, अब हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी आने वाली है। तो आप में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको सारा एक्स्ट्रा काम खुद ही करना पड़ गया? रसोई में भी काम बढ़ गया, डेकोरेशन का भी काम बढ़ गया, शॉपिंग का भी काम बढ़ गया, नंदों के लिए साड़ियाँ लानी है, उनका स्वागत करना है, ये करना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर, अकेले के ऊपर ही सारा काम आ जाता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए जरा। आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे हैं जो त्योहार आने से पहले ही
उनको दिक्कत होने लगती है कि हे भगवान, अब त्योहार आ गया, अब स्कूल से तो छुट्टी मिलेगी नहीं हर त्योहार की। इनफैक्ट स्कूल में भी काम बढ़ जाता है, स्कूल में भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, वहां भी हमारे लिए ही काम बढ़ जाता है। तो क्यों ना स्कूल में भी और घर में भी हम एक टीम बनाएं और टीम वर्क से काम करें। और उससे क्या होगा, एक तो बच्चों के अंदर भी टीम की भावना जागृत होगी, हमें भी थोड़ी सी मदद मिलेगी, और एक साथ में सेलिब्रेट करने का जो मजा आएगा उसकी मेमोरीज ही अलग तरीके से बनती हैं। तो अब जरा दिखाइए फैमिली का हमारा जो, सो लेट्स सी। तो हमने ये लिखा है फैमिली प्रोजेक्ट सेलिब्रेटिंग टुगेदर। इसमें हम एक फेस्टिवल को लेंगे जिसमें बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं। उन रोल्स को हम डेकोरेशन, म्यूजिक, डांस, फूड और प्रसाद कौन बनाएगा, एंकरिंग कौन करेगा, कल्चरल होस्टिंग कौन करेगा, क्या क्या करेगा, अलग अलग तरीके से हम उसको बनाकर, और स्कूल में भी और घर में भी जो फेस्टिवल्स है उनको टीम की तरह काम करेंगे। ये तो हुई फेस्टिवल की बात। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, किचन के काम में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आप मान लो एक डिश बना रहे हैं, मान लो खीर ही बन रही है घर में, तो छोटा सा काम है ड्राई फ्रूट्स को कट करना। अगर हमने बच्चे को यही काम दे दिया तो ही हमारा कम से कम 10-15 मिनट का काम उन्होंने संभाल लिया, और उनको भी लगेगा कि ये जो खीर बनी है ना, ये हमने सबने मिलकर बनाई है। तो वो खीर की बुराई करने से पहले भी सोचेंगे कि इसमें मेरा भी रोल था खीर बनाने में। सो इन्वॉल्विंग देम कॉन्शियसली। और एक और बात बताती हूँ, मेरी आप लोगों से सिंपैथी तो है, आई नो दैट यू वुड डू एक्स्ट्रा वर्क, बट एक कंप्लेंट भी है। वो शिकायत क्या है पता है? I have seen most of the females in Indian homes, they do not like to delegate also. They want सारा काम मैं ही कर लूं, and they feel कि ठीक है ना, इतनी देर में तो मैं ही कर लूंगी, तुम इतना फैलावरा कर दोगे, तुम इतने से काम को इतना समय लगा दोगे, ऐसा होगा वैसा हो। स्कूल में भी आई हैव सीन प्रिंसिपल्स आल्सो हेजिटेटिंग टू डेलीगेट। द हेड कोऑर्डिनेटर्स एंड इंचार्जेस, दो तरह के कोऑर्डिनेटर्स मैंने देखे, एक जो पूरा ही काम सब पे डाल देते हैं, और एक जो खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं और फिर ब्लेम करते हैं दूसरों को कि कोई तो हमारी मदद नहीं करता, सारा काम हमें ही अकेले करना पड़ता है। सो लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड विथ यू ऑल। So what you can do is you can write this mnemonic and try to guess करो कि टी से क्या होगा इसमें। What are the things that are necessary to become a team? तो मैं आपको हिंट देती हूँ। टी से होगा ट्रस्ट। जब हम आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं तभी तो टीम बन सकते हैं। जब हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं होता तो शक से, और हम लोग अविश्वास से जब काम करते तो टीम नहीं बन पाती, तो फिर झगड़े होते हैं आपस में, है ना। सो वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स इज ट्रस्ट। E is empathy. E. Very good, Jyoti. So E is empathy. Empathy means where we are able to understand each other's difficulties, each other's problems, and we are ready to be there for each other. That's one of the qualities of a team. जब हम टीम की तरह काम करते हैं तो एक दूसरे को समझ के जब काम करते हैं, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस, एसोसिएशन, वेरी गुड, वंडरफुल, affection in the team is also one of the very important things that we can have. And
M से आपने बोला motivation, and I would like to add mutual respect, adaptation, Shweta. Mutual respect. Sometimes when we think too much about ourselves and put down others, they won't like to contribute in a team. And so, mutual respect, again, one of the very, very important things. Again, we now come to W, willingness to collaborate. I see that people are so ready to compete. अपने ज्योति तो बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दे रही है. So we are ready to compete with each other, but can we now change our mindset to collaboration rather than competition? Because there is so much work to do, we will not be able to do it alone. And then comes O, openness to communicate. Sometimes I see people are interested more in talking behind the backs. Why can't we have an open, transparent system of communication? Because that is what our children will also learn. And then we have the R. Can anybody decipher R for me? Respect, we have already covered in mutual respect. Any other thing? Resilience. A good team is a resilient team. Any other word that comes to your mind? One thing that is missing in teams, responsible, very good. Resourceful, very good. And one more thing is role clarity. Sometimes teams fail to perform because they do not clearly know what are their roles. Reliability, following the rules, that very, very important points. And the last but not the least is knowledge sharing. My dear friends, knowledge is not to be gatekept. We should be open to share knowledge with each other. That makes the entire team strong. So, teamwork is one of the values that we need to include in our social emotional learning curriculum. And I hope that these projects that we have designed, the movie that we have made, will help you to stimulate your children. Sakshi, kindness, very good. Will stimulate your children to have a good team spirit with each other. And this could be one of the activities that you can do, where you can ask them, chalo mnemonic banao, teamwork ka. And they will themselves come up with so many words, and then you can have a discussion with them over it. My dear friends, we will be bringing 10 topics for different grades in each capacity with you. In the last webinar, I had spoken to you about the preparatory, one of the topics in the preparatory stage. Today, I have spoken to you in the middle stage. Next, I will speak to you from the next group of secondary. But remember that this is only one example. We have 10 different topics जो आपके हेम वर्चुअस के पोर्टल पे सारे अवेलेबल हैं, आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हैं. आपको 1 मंथ में ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं. और जो टीचर्स लगकर हमारे साथ काम कर रहे हैं इसमें, today Bhaiji has declared that we are going to announce special prizes for at least 10 teachers who are ensuring जो भी schools 5 marks per value dedicate कर रहे हैं internal assessment से, और जो हमारे लिए इन बच्चों को लेकर पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेबिनार्स में रेगुलरली आ रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, बच्चों से फुल्ली एक्टिवली प्रोजेक्ट सबमिट करवा रहे हैं. These 10 teachers will be awarded with prizes, awards. They could be tablets, they could be some very precious electronic gadgets for you.
And also, we will be considering that these schools are our focus schools, and we will be involving them in the Hem Utsav. Every year हमारा एक हेम उत्सव होता है. देखिए, दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल का एक सैंपल लेटर जो उन्होंने हमें दिया है, कोटा से ये स्कूल है. ये स्कूल हर साल बहुत एक्टिवली हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ी हुई है, और इन्होंने हमें ये लेटर दिया है. देखिए, 5 वैल्यूज के लिए इन्होंने 25 मार्क्स अलॉट किए हैं, 5 मार्क्स फॉर ईच वैल्यू. तो ये स्कूल हमारे लिए फोकस स्कूल बन गया. वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सच स्कूल्स हु आर कमिटेड फॉर अस. इन स्कूल्स का हम मंथली रिपोर्ट सबमिट करेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स एनालाइज करके. हमारे पास रिसर्चर्स की, हाईली क्वालिफाइड रिसर्चर्स की टीम है जो इन प्रोजेक्ट्स को बहुत बारीकी से देखती है. इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज पे हम इनको इवैल्यूएट करते हैं. इसकी सारी रिपोर्ट केवल इन फोकस स्कूल्स को हम देंगे. और दूसरा, हमने इस साल क्योंकि फैमिलीज को इन्वॉल्व किया है, तो हम पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग्स करेंगे. कुछ स्कूल्स जहां पर ये बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स होंगे, I myself will physically come and interact with these parents and take their sessions. So these are few of the things that I wanted to announce. I wanted to tell you that we are all there with our entire team to support your efforts to bring this social, emotional, ethical development to you, to your children, and we have a vision of creating a society that is inclusive, that is having that kind of emotional resilience, that is walking together as a team to achieve our national goals and international harmony. That's all what I wanted to say today. Thank you so much.